અમદાવાદમાં યુબીએસ એથ્લેટિક કિડ્સ કપ સિઝન 3 યોજાશે, જેમાં 7 થી 15 વર્ષના બાળકો ભાગ લઈ શકશે. અમદાવાદ હવે રમતગમત ક્ષેત્રે એક મહત્વપૂર્ણ શહેર તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. યુબીએસ એથ્લેટિક કિડ્સ કપ સિઝન 3ના લોન્ચ સાથે બાળકોની રમતગમત સાથે જોડવા માટે નવી પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ કાર્યક્રમ ખાસ કરીને 7 થી 15 વર્ષની વયના બાળકો માટે યોજાશે, જેમાં સ્વિસ એથ્લેટિક્સના નિષ્ણાતો દ્વારા માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે. કાર્યક્રમમાં ઓલિમ્પિયન આનંદ મેનેજીસ, સીઈઓ ડેનિયલ શંકર, સીઓઓ એડ્રિયાસ કુએની અને પ્રોજેક્ટ ડિરેક્ટર ઝાહિર ખાન હાજર રહ્યા હતા. આ પહેલ દ્વારા ભવિષ્યમાં કોમનવેલ્થ ગેમ, એશિયન ગેમ્સ અને ઓલિમ્પિક માટે ભારતના યુવા ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહન મળશે. As we know in sports, emotion play a magical... So my name is Danny Schenker. I'm an athletics enthusiast, so to speak. We are the co-founders of the Athletics Kids Cup, which we could do with our beautiful partner UBS, which support us to execute this beautiful project. Our ambition is how can we move as many children as possible in India. And I'm sure by doing this beautiful project, we will find lots of good talents, because I'm a true believer India has very talented sports people. We just have to find them. And I'm sure through our initiative, we're going to find them. So we have more Neeraj Chopra, and Neeraj Chopra is our big brand ambassador, and he's so close to this project, and it's close to his heart that we're going to do that very successful, bring that forward. Okay, what are your expectation in season 3? In season 3, my expectation is that we grow the project. We have done last year 25,000 children, which we touched basically with our project. I think we can do over 500,000 reach this year, and we're going to grow. And what is even more important, we would like that the children can have a very enjoyable experience, because if children enjoy it, the experience, they will move on and train harder, and that's what is needed for become a successful sports person. Thank you. नमस्ते सभी लोगों को. Yes sir, continue. नमस्ते सभी लोगों को. मेरा नाम ज़हीर खान है. मैं बड़ौदा से हूँ और मैं डैनी को 5 साल पहले मिला और शेल्बी को. और ये जो प्रोग्राम है स्विट्ज़रलैंड में पिछले 15 साल से ऊपर से हो रहा है ये प्रोग्राम. और ये प्रोग्राम इस तरीके से होता है कि हर बच्चा जो 7 से लेके 15 साल का बच्चा है स्विट्ज़रलैंड में, वो इस प्रोग्राम में पार्ट लेता है. और जैसे कि शेल्बी ने बताया, बाकी सभी लोगों ने बताया, पहले स्विट्ज़रलैंड में भी एथलेटिक्स में इतने मेडल्स नहीं मिलते थे. मेडल मिलना मेन चाह नहीं है यहाँ पर, बट मेन चाह है कि बच्चे बाहर निकलें, खेले कूदें और एंजॉय करें. और बाकी जब वो बाहर निकलेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, तो ऑटोमेटिकली मेडल्स भी मिल जाएंगे. तो इस तरीके से हम लोगों ने सोचा. और फिर नीरज स्विट्ज़रलैंड हर साल आते हैं डायमंड लीग में पार्ट लेने के लिए. तो जब वो स्विट्ज़रलैंड आते थे तो देखते थे कि बच्चे यहाँ पर बहुत ही एक्टिव हैं और बचपन से ही कुछ हो रहा है. तो नीरज ने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं हम कुछ प्रोजेक्ट इंडिया लेके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्रोजेक्ट में पार्ट लें. तो नीरज का बहुत बड़ा योगदान है इसमें कि ये प्रोजेक्ट स्विट्ज़रलैंड से इंडिया आया. और फिर डैनी हमेशा इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, और वो इंडिया आज से नहीं 20-25 साल से इंडिया आ रहे हैं. बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से इंडिया आ रहे हैं. और इंडिया में देखें, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलेशन इंडिया में ही रहता है. और अगर हम देखें स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू में, हमारे यहाँ बेस्ट इंजीनियर्स, डॉक्टर सबको ही हैं, बट स्पोर्ट्स में अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं. तो आई थिंक ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें स्पोर्ट्स की तरफ भी उसका जो महत्व है उसके टूवर्ड्स मोटिवेट करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस स्पोर्ट्स में पार्ट लेंगे. अहमदाबाद की पॉपुलेशन कितनी है? So I'm Shelby, and I'm part of this incredible team who has the opportunity to bring you the Athletics Kids Cup, the UBS Athletics Kids Cup here to India, and especially to Ahmedabad. It's a triathlon, the Athletics Kids Cup. It's running, jumping, throwing, the 3 fundamental movements that in almost every sport is needed, especially in athletics. So every kid is doing a run, 60 meters, a jump, long jump, and a throw. And especially the throw, you all really know very good in India with Neeraj Chopra. And they have the opportunity to experience competition. Competition is important for kids. The best kids will compete in the regional finals, and then the very best kids around about 500 of the best kids will compete in a Grand City final next January. And we can celebrate the sport and look for some additional talents that maybe will be then on the big stage on Commonwealth Games or in Olympic Games.
So that's why we try and bring our experience from Switzerland with this very, very successful project we have in Switzerland, bring this experience here and work together for a better future for these kids. You'll be instilling sporting activity habits in the children. Absolutely. So the kids need to move, right? Because nowadays the physical activities have come down under the pressure of education. Absolutely. And the thing I think we really need to work together to maybe change the mindset as well a little bit here in India is that sports and movement helps be a better student, helps to be better in career. The highest and the most important CEOs in the world, and some of them come out of India, they really have always sports in day, every day and weekly schedule. Why? Because sports make them a high performer. And we have to teach that the kids and the parents to do that. लुइस मिनेजिस है, मैं ओलंपियन हूँ। मैं 2000 साल में सिडनी ओलंपिक्स और एशियन गेम्स खेला हूँ। मैं फ़िलहाल एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा हूँ। मैं उनके जो मॉनिटरिंग कमेटी वो देख रहा हूँ और मैराथन कमेटी का मैं ये हूँ और मैं सिलेक्शन कमेटी में भी हूँ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया में। यहाँ पे अहमदाबाद में जो यूबीएस एथलेटिक किड्स कप हो रहा है वो पूरा मेरे देखरेख में यहाँ पे हो रहा है और ये सीज़न 3 है यहाँ पे। सीज़न 2 हम लास्ट टाइम यहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट हमने किया था और वो बहुत ही अच्छा हुआ और हम आने वाले ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ पे है और हम चाहते हैं कि और बच्चे और लोग यहाँ पे पार्टिसिपेशन करें, बच्चों के इसमें खेल की भावना हो और जो आने वाले समय में ये ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम कैसे सक्सेस किए कि जो गुजरात के बच्चे हैं वो उसमें आके पार्टिसिपेशन करेंगे, देखने आएंगे। और इससे बढ़कर और है कि जो यूबीएस किड्स कप जो है जो स्विट्जरलैंड से यहाँ पे हमारे देश में काम करने आए हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है। लास्ट 15 साल से वो उनके स्विट्जरलैंड में इस चीज़ में काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत से रिजल्ट्स दिए हुए, कम से कम वहाँ पे 90 से लेके 100 इंटरनेशनल मेडलिस्ट है। कॉमन मतलब वहाँ पे जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडलिस्ट उन्होंने प्रोड्यूस किए इसी प्रोग्राम से, यूरोपियन चैम्पियनशिप प्रोड्यूस किए, उसके बाद वर्ल्ड इंडोर चैम्पियनशिप प्रोड्यूस किए है। तो उनका ही एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं आने वाले समय में यही प्रोग्राम यहाँ पे होगा, लंबे तक चलेगा और आने वाले समय में हम हमारे गुजरात से ओलंपियंस वर्ल्ड चैंपियन प्रोड्यूस करेंगे। इसके लिए प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं। तो थैंक्स टू द गुजरात गवर्नमेंट कि वो हमको सपोर्ट कर रही है, गुजरात स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, उसके बाद गुजरात एथलेटिक एसोसिएशन यहाँ पे सपोर्ट कर रही है और सबसे बड़ा थैंक्स यूबीएस का कि जो हमको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। थैंक्स टू यूबीएस कि ये प्रोग्राम रन करने के लिए हमको सपोर्ट कर रहे हैं। उनके जो बाहर से जो डेलीगेट्स आए हैं डैनी और शेल्वी और यहाँ पे जो इंडिया हेड मेरे मित्र है जहीर, उनको भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने सोचा कि इंडिया में कुछ करना है। बिकॉज बहुत से कम लोग होते हैं जो हमारे देश के लिए सोचते हैं। जहीर एज ए इंडियन वो हमारे बारे में सोच रहा है कि और वो सेकेंड थिंग वो गुजरात का ही बच्चा है, उनकी परवरिश यहाँ पे ही हुई है, वो रहने के लिए बड़ौदा में, लेकिन अभी कुछ समय थे वो स्विट्जरलैंड में। तो थैंक्स टू एवरीवन। मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को और प्रमोट करे, मीडिया ही कर सकती है और बच्चों को और पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट है, अपने स्कूल में जाके बोलिए कि हमको इस किड्स क्लब में पार्ट लेना है और तभी हमारे पास अप्रोच होगा, हम आएंगे, उनको हेल्प करेंगे और इसको हम लोग सक्सेस बनाएंगे। दिसंबर में इसकी इवेंट्स होंगे, जोनल चैंपियनशिप और जनवरी में इसकी फाइनल होगी। तो थैंक यू वेरी मच।